Let us start recording. So in the last class, what I was discussing? Sir, expression for T vector, B vector, and N vector in generalized parameter. What is called? What is that thing called? Finite. Trihedral. Finite Trihedral. So I told you that there every curve you have a trihedral associated to the curve at every point. If you have a curve, I am just recalling very quickly, and you can have three actually: unit vector, tangent, normal, and binormal, and it will be forming three planes also. This plane is called osculating plane. This plane is called normal. T and N called osculating plane. T and B is called, what is the name of T and B? Normal plane, and T or N, sorry, B or N called, this is osculating plane, and then making by B and N is, it is T और N oscillating होता है, T और B rectifying होता है, और B और N normal होता है. हाँ, B and N is called normal plane. इधर लिख दे रहा हूँ मैं इसको कंफ्यूज ना, और B और T is called rectifying plane. Yeah, and we have derived expression for all these. This T can be denoted by R dash. This normal is denoted by R double dash upon mod R dash. If I am taking in natural parameter, you know dash means dr by ds, and the vector B, this is T cross N. So you can find it is R dash cross R double dash upon mod of R double dash. ठीक है, क्लियर है? यार परमिशन मांग रहा था बच्चे. परमिशन मांग रहे हैं यार, कहाँ हमारे पास जो आ रहा है उनको तो दे दिया. सर इसका सर रूम जो है आप बंद कर दिया था, वेटिंग रूम. सर वो खुद कनेक्ट हो जाएंगे फिर. अच्छा, वेटिंग रूम क्लोज कर दूं मैं? सिक्योरिटी में जाके सर वो वेटिंग रूम ऑफ कर दिए. तो मैं तो अलाउ कर रहा हूँ ना सबको, ज्वाइनिंग में टाइम लग रहा है. यहाँ पे कोई भी जैसे परमिशन मांगता है तो आई एम अलाउइंग देयर. सर वो डिस्टर्ब एडमिट ऑल का ऑप्शन होता है, मैं एडमिट करता रहता हूँ बीच बीच में. वो ज्वाइनिंग प्रॉब्लम उनकी नेट की प्रॉब्लम होती है. सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है. ठीक है, यस. एंड देन वी डिराइव वन फॉर्मूला फॉर दिस generalized parameter also, है ना? So for generalized parameter it was coming how much? T was, in terms of generalized parameter, T was R dot upon mod of R dot. So bhai, and what about B? Yes, then we calculated B. B was coming R dot cross R double dot upon mod of R dot cross R double dot, and then we got the last n was B cross T. इसका क्रॉस करते हैं, तो R dot cross R double dot cross R dot upon mod of these two into mod of R dot. It was your. Now let us take one problem. Actually, I want to take one problem so you can understand. So find the one problem. Find the rectifying plane. Suppose I am taking. Find the rectifying plane somebody asking Friday की टाइमिंग क्या होती है क्लास? क्या यार, जवाब दे दो भाई उन्हें कोई. Find a rectifying plane at T is equal to T naught for the helix. For the helix. हेलिक्स आपको पता है, आप कई बार लिख चुके हैं. और बताएगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हेलिक्स? बोलिए.
What is X x is A equal to cos A cos t t, y is is equal to A sin t, t is equal to BT. सर Z x is is equal equal to to a cos t, y is equal to a sin t, z is equal to bt. yes, yeah, I can write in this form. इसमें भी लिख सकते हैं आप a cos t a sin t j प्लस b t k, है ना। देखो एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो स्मॉल t है इट इज अ पैरामीटर, और ये जो प्रिंसिपल ये जो टेंजेंट है इट इज वेक्टर t है ना। ये तो कंफ्यूजन मत हो जाना इसमें, इसलिए आई एम पुटिंग t बार बार यहाँ पे। that t is a parameter here, you know this thing very well, है ना। so this is the, इस पे restriction भी होती है, you know, a should be greater than 0, b is not 0 because it's a space curve. So if you remember, I told you what is the equation of a rectifying plane. This is your rectifying plane, making by clubbing tangent and what binormal, है ना, generated by tangent vector and binormal. So it will be orthogonal to n. So what is the equation? बताइए। Equation of rectifying plane, तो जिसके नॉर्मल है उससे डॉट प्रोडक्ट 0 लिख दिया था, r माइनस r, R vector, small r vector dot n vector is equal to 0. ये बताया था भाई, सिंपल है। रेक्टिफाइंग प्लेन मींस जनरेटेड बाय टेंजेंट एंड बाइनॉर्मल, इट विल बी ऑर्थोगोनल टू द नॉर्मल। सो r माइनस r डॉट n इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आप ऑक्सक्लूडिंग प्लेन की लिख सकते हैं, r माइनस r डॉट b इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? yes sir. Yes. So I have to find this n, and n का, because it is in generalized parameter, n का formula हमारे पास ये रहा, r dot cross r double dot into r dot. So I have to find r dot r double dot. So let us take r. So rt is how much? Rt I am writing in terms of coordinates, suppose. So I am taking a cos t, a sin t, and b t. I am writing this. Now I need r dot. So I can take r dot t minus a Sin t. sin t, a cos t, and Cos t. b. Okay, and r double dot also I need. So r double dot t, yes, keep speaking भाई, बोलते रहो। minus a cos t Minus A cos t minus A sin t and or 0. 0, है ना? 0. and I need it mods also. So here you can find mod also. What about mod of r dot? How much? But these are the Under root A coefficient square of I, plus j, k. Under root a square sin square t plus a square cos square t plus b square. So I can write a square. under root plus B square plus B square. A square b What square. about, yes, very good. What about mod r double dot? A square cos square t plus a square sin square t plus 0. So अभी वही आ a जाएगा. square. A आ गया. A square. A आ गया ना? Because a is positive. So I got all these things. Now I know what is n. N is r dot cross r double dot. So I need cross product. So what about r dot cross r double dot? T understood. I am not writing t. It is understood. So what about cross product? Cross product क्या होता है? It is again a vector, है ना? And how you find it? By taking determinant I, j, k, this, and this, and याद है? How to find cross product? बताइए. What Yes, is first sir. term? What is first term? Hide first column. So a cos t into 0 minus b into a sin t. So a b sin t. बताइए, am I right? भाई क्रॉस Yes, कैसे sir. निकालते थे? क्रॉस आप जो निकालते हैं वैसे निकालते थे। आई जे के, यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर लिखेंगे माइनस ए साइन टी, जे का सेकंड वेक्टर ए कॉस टी एंड बी, देन आर डबल डॉट. सो आर डबल डॉट मीन्स माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी एंड 0. अब फर्स्ट एलिमेंट जस्ट हाइड आई, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, देन सेकंड माइनस जे, माइनस टाइम आता है ना, तो हाइड द सेकंड कॉलम. हाउ मच?
0 एंड माइनस माइनस प्लस ए बी कॉस टी, और एक माइनस पहले से था तो माइनस ए बी कॉस टी। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, हाइट फर्स्ट मल्टीप्लाई 0 इंटू माइनस ए बी, ये सेकेंड हाइट करा है तो 0 एंड प्लस ए बी कॉस टी, और माइनस साइन आता है जे का तो माइनस हो गया। एंड लास्ट वन इज हाउ मच, हाइट थर्ड, so minus minus plus a square sin t cos t, and कितना आएगा ये बताइए, a square sin t cos t, ये sin square t, ये sin है, ए A स्क्वायर square- आएगा सर, a square, A square. yes exactly, a square आएगा ना। और मुझे देखो इसका भी मॉड चाहिए डिनोमिनेटर में, तो इसका मॉड भी आप यहीं निकाल लें, मॉड ऑफ r डॉट r डबल डॉट, सो इट विल बी, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए टू द पावर 4, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, साइन सॉरी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, इट विल ए बिकम स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, नॉट प्लस, इट इज इंटू मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा यहाँ तो, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, एंड प्लस ए टू द पावर 4 है ना इसका स्क्वायर, सो हाउ मच, ए स्क्वायर में यू कैन टेक ए कॉमन आउटसाइड स्क्वायर रूट से, तो कितना बचा, हाउ मच लेफ्ट, ओके, यू डॉट आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, नाउ व्हाट आई नीड, देखिए अभी मुझे आर डॉट क्रॉस आर डॉट का फिर अगेन क्रॉस लेना आर डॉट से, न्यूमरेटर में यही तो है, so I will take again the cross product of this with r dot, so I will take r dot cross r double dot cross product with r dot, इसे आप फिर वही करेंगे, अब क्या क्या करना है, ये फर्स्ट दिस रो एंड दिस, तो सेम फॉर्मूला आई जे के उसी तरीके से, तो अगेन हाइडिंग द फर्स्ट, और अभी ध्यान रखना ये वाली आई एम टेकिंग दिस एंड दिस, ये बीच का नहीं है अभी, है ना, तो हाउ मच इट विल कमिंग, फर्स्ट टर्म बताइए कितना आएगा, ए क्यूब कॉस टी, ए क्यूब हाँ। प्लस ए बी स्क्वायर कॉस टी, हाँ ठीक है, ए क्यूब कॉस टी प्लस ए बी स्क्वायर कॉस टी प्लस ए बी स्क्वायर कॉस टी, देन सेकंड टर्म हाइट 10 कॉलम माइनस साइन के साथ आएगा, जानो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब साइन टी माइनस साइन एंड माइनस ए बी स्क्वायर AB साइन cos- टी, yes ए बी स्क्वायर साइन टी, और माइनस साइन एक पहले से था तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि सेकंड टर्म में माइनस आता है, तो यू विल बी हैविंग ए क्यूब साइन टी प्लस ए बी स्क्वायर साइन टी, एंड लास्ट टर्म तो हाइड दिस, देखो minus माइनस ए क्यूब बी साइन टी कॉस टी एंड माइनस माइनस प्लस हो गया बल्कि, प्लस ए क्यूब बी साइन टी कॉस टी माइनस ए क्यूब बी साइन टी कॉस टी, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, हेलो सर, ए स्क्वायर होगा या क्यू होगा ये, हाँ ए स्क्वायर हाँ, बी yes, sir. साइन टी कॉस टी माइनस ए स्क्वायर बी साइन टी कॉस टी, यस सर, ठीक है 0 हो जाएगा टर्म, कैंसिल हो गए, तो आई गॉट ऑल दीज थिंग्स, नाउ पुटिंग इन द फॉर्मूला, सो योर एन वेक्टर, क्योंकि हमें एन फाइंड करना था मेनली बस, सो एन वाज एज आई टोल्ड यू आर डॉट क्रॉस r dot upon mod of r dot cross r double dot into mod of r dot, तो न्यूमरेटर तो हमने अभी निकाला, ये रख दीजिए आप, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर कॉस टी, ये फर्स्ट टर्म था ना, सेकंड टर्म था ए क्यूब साइन टी प्लस ए बी स्क्वायर साइन टी, इसमें एक कॉमन भी आएगा, चलो नेक्स्ट उसमें करते हैं, तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर साइन टी, मैंने साइन टी कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में, यहाँ कॉस टी कॉमन लिया, लास्ट टर्म इज 0, ये आपका क्या है, इट इज द न्यूमरेटर, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, सो आई एम राइटिंग इन ट्रिपलेट्स, डिवाइडेड बाय mod of r dot cos r double dot, it was coming a times a square plus b square,
a times under root a square plus b square. What about mod of r dot? Under root a square plus b square. ठीक है, तो देखो एक a से तो a कैंसिल ऊपर, इस a से एक a कैंसिल होगा ये वाला, एंड दिस रिमेनिंग स्क्वायर, दिस a कैंसिल स्क्वायर, so you got only a square plus b square cos t, a square plus b square sin t, comma 0 अपॉन a square plus b square. ये भी आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे. फाइनली यू हैव वेक्टर n is coming cos t sin t and 0. 0. This is your n. Now your equation, you can find equation now. At the point t naught, it will become r minus r t naught. है ना, हमें प्रॉब्लम थी फाइंड एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट t naught. अब यहाँ t naught कुछ फिक्स होता मान लो थीटा π/2 π/4, तो वो रख देते. या हमें जनरल इक्वेशन निकालनी है. It will become r minus r t naught and dot n at the point t naught. It is the equation of rectifying. देखो जब आप इससे करेंगे तो आई कैन राइट इन दैट फॉर्म x माइनस r की कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x y z है कैपिटल, ठीक है, क्योंकि आपका 3D में, तो यू कैन राइट x और rt नॉट के rt कितना था, rt वाज दिस a cos t a sin t bt, so it will become a cos t naught. So when you will take minus sign, so how are it becoming x minus a cos t naught y minus a sin t naught and z minus कितना था bt. ये तो हो गया r माइनस r t नॉट. इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें cos t sin t 0. इज इट क्लियर? कैपिटल R आपके पास जो इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन है उसके हमने कोऑर्डिनेट x y z मान लिए पार्टीशन में विद टर्म इन वेयर x y z आर द फंक्शन ऑफ t. तो यू कैन राइट, अब इसका डिफरेंस करेंगे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है x माइनस a cos t, r t नॉट कितना था हैं, A cos t. हाँ यहाँ पे भी t नॉट लिख दीजिए cos t नॉट sin. अब यू टेक डॉट प्रोडक्ट, तो यू विल बी गेटिंग x माइनस a cos t नॉट dot cos t, dot product it will be coming a scalar quantity, plus y minus a sin t naught into sin t naught, and last term is 0. Z minus bt into. Okay, अब देखो उस टर्म कैंसिल होंगे यहाँ पे x which is x cos t. देखो ये टर्म जो है a cos square t, सही है, कैंसिल होगा वो बन जाएगा कुछ. तो पहले मैं इसका टर्म लिख दे रहा हूँ x cos t नॉट प्लस y sin t नॉट. इसकी इक्वेशन क्या होती थी, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, ध्यान रखना ना, दिस इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ प्लेन रेक्टिफाइंग. तो जब मल्टीपल प्रोडक्ट करा हमने तो x cos t नॉट प्लस y sin t नॉट, एक टर्म क्या आएगा यहाँ पे देखिए माइनस ए cos स्क्वायर टी नॉट माइनस ए sin स्क्वायर टी नॉट. तो कितना बच गया माइनस a माइनस ए, और उसको अगर आप चाहें तो उधर ले आके लिख दें तो इट विल बिकम इज इक्वल टू ए. उधर, तो इट इज द इक्वेशन ऑफ अ ऑस्कुलेट सॉरी रेक्टिफाइंग प्लेन. क्लियर है भाई? x cos t नॉट प्लस y sin t नॉट इज इक्वल टू a. अब t नॉट अगर पर्टिकुलर पॉइंट होगा तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी. बताइए. हेलो सर, जी सर एक बार और बता दीजिएगा ये वाला x माइनस a cos, ये नेक्स्ट वाली ये? स्टेप नीचे वाली सर. ये जी सर, ये जी सर. ये तो डॉट प्रोडक्ट कर दिया ना हमने. 3 वेक्टर्स यहाँ पर है आपके पास, 3 वेक्टर्स यहाँ पर है. डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड. ठीक है यस सर. हाँ, ये डॉट जी प्रोडक्ट है. आप जो ai प्लस bj प्लस ck लिखते हैं ना, ये वही चीज है. यू कैन राइट ai प्लस bj
प्लस सी के, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी। यस सर, आ गया सर। यस। सो इट इज द इक्वेशन ऑफ अ रेक्टिफाइंग। इसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके आती है इसके इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन या समथिंग, यू कैन सॉल्व इन दिस मैनर, है ना। एन आपको पता था, अगर इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता तो उसमें यू नीड बी, बी का फॉर्मूला यू हैव ऑलरेडी डिराइव्ड। चलो, so next important topic we have now, I have 10 minutes, yes अभी है time। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अभी बच्चे यार कितना देर तक एंटर होते रहेंगे, अभी भी 2 बच्चे आ रहे हैं। इसके बाद किसी क्लास है नेक्स्ट आपकी? मुजीबुर सर की सर। अच्छा चलो ठीक है, सेट थ्योरी कुछ लोगों के दिया है। यस सर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज curvature. Important topic is curvature. This is a very basic property of the curve, curvature. Because of the curvature, curve is there. Curvature means what? The path followed by curve. Curvature means the turn, how much Curve. it will be turning, है ना, कि उसके अंदर कितना कर्वेचर है, कितना टर्न होगा। And whenever you have something related to turn, इसका मतलब you are talking about angles। क्यों भाई? When you are talking about turns, it means angle, left turn, right turn। So this is the, if you see here, this is the curvature। Now how to measure I will explain, but if you have curve like this, they all have curvatures। They all have curvatures like this, they all have curvatures। और you can see कि इसका कर्वेचर जो है इससे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा कर्वनेस है ना। दिस कर्व हैज मोर कर्वेचर, इससे दिस कर्व हैज कर्वेचर ग्रेटर देन दिस कर्वेचर। और अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं, व्हाट इज द कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन? कुछ कर्वेचर है इसमें? Nothing. स्ट्रेट लाइन में कर्वेचर तो जीरो Zero. होगा इसमें। जीरो होगा ना? जीरो सर। Yeah, Yes, it is a result actually. It is a result. A straight line has curvature 0. Yeah, straight line is a curve of curvature 0. Because there is no curveness, No turn. है ना। ये भी definition है straight line की। A straight line is a curve whose curvature is 0. And curvature plays an important role in lying कर्व रेलवे ट्रैक्स। जैसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं तो आपने देखा होगा कहीं पे ट्रैक ऐसे कर्व हो रहा होता है जाके। क्यों भाई? रेलवे लाइन Yes, सीधी sir. कोई रहती है हमेशा? क्या रेलवे लाइन हमेशा सीधी चलती है? नहीं सर। नहीं सर। उसमें कर्व भी आ रहा होता है No, कहीं sir. कहीं पे। तो वहां पर कर्वेचर मेजर किया जाता है कि हाउ मच द कर्व शुड बी देयर सो ट्रेन विल नॉट फॉल। ज्यादा कर्वेचर तो नहीं रख देंगे ट्रेन पर चले टर्न में। तो दिस हैज अ एप्लीकेशन लाइंग द ट्रैक्स of rails and so many places। So how to measure, that is the important thing, है ना। कर्वेचर तो आपको समझ में आ गया। Now how to measure it? So firstly a basic definition, what is curvature? So suppose I am taking a curve and I am taking two tangents, suppose at this point P and at this point Q, two adjacent points I am taking, nearby points, suppose at an arc distance small h, this is the distance between P and Q, and this is a tangent. Suppose I am denoting it by tangent T, Ts, T is a function of s is your natural parameter, and this is I am taking T of s plus h, है ना, ये distance पर है, and I am taking, suppose they are making some angle because these are the tangent, so they will be cutting here somewhere, है ना, कुछ angle बनेगा। I am taking, suppose this angle is omega, so it is suppose your Ts vector, tangent at point P, this is your Q vector, suppose whose position vector is T of s plus h, and suppose it is making some angle omega, omega angle सबने कर दिया। Is it clear?
Yes, sir. सर ये h क्या है? h जो है h is ये the parameter, arc length parameter, natural parameter. So tangent को at a point tangent is a number, but in general I can write tangent as a function of s ना. तो ts लिख दिया मैंने. जनरल नोटेशन दे रहा हूँ मैं. इसका पोजीशन सर, वेक्टर मतलब आपका u है. h जो है मतलब h जो है p और q के बीच का डिस्टेंस मानेंगे ना जी हम जी उसको? हाँ हाँ. h is a arc length distance. p q के बीच का arc length distance. अगर मैंने ऐसे arc बनाया इसका मतलब arc distance है ये h. Okay. This is somewhere. Let omega denotes the angle between the tangent vector ts and between the tangent vectors at p. देखो p, अब आप इसको ts में इसलिए लिख रहा हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट वेक्टर. वैसे तो अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर ओरिजिन है, तो यू विल राइट इट इज सम वेक्टर आर एस, है ना, आर के टर्म में लिख सकते हैं हम, एंड इट इज आर ऑफ एस प्लस एच. ये नोटेशन दे सकते हैं आप इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं. सो एट द पॉइंट पी, अगर आई एम टेकिंग पी आर एस और टी एस एंड Q. Q is a point R of S plus H. हमने एक नियर बाय पॉइंट दे दिया. Then, अब you know when H will be decreasing, what will be happening? This Q will be tending towards P. ये तो होगा. तो p पर आ जाता है. Q P पे आएगा. तो जो एंगल होगा ये डिपेंड करेगा आपके पास Q P पे मूव करने का मतलब क्या हुआ. It will be giving you how much the angle is changing when S tending to 0, है ना. So Yes, sir. then the limit of the ratio omega upon h as h tending to 0. When h tending to 0, so what is the limit? Means how much this is changing. This is called a curvature. This is called the curvature of the curve C at point P. At the point P. Okay. It means what? When your इसमें कर्व में यही तो हो रहा है. When you have some point here, so how much this is changing? सर कर्वेचर तो हम किसी भी पॉइंट में निकाल सकते हैं क्योंकि हर पॉइंट पे कोई ना कोई चीज बैंड होगी. हर पॉइंट पे कर्वेचर आएगा और हर पॉइंट पे डिफरेंट हो सकता है, हर पॉइंट पर सेम भी हो सकता है. सर्किल इज an example of a curve which has curvature same at every point, है ना. I will derive this thing. So at a point, what is this? The ratio between omega and h when s tending to 0. So the limit point of this. It means what? I can say it is the arc rate of the turning of the tangent. ये तो हो गया भाई. Arc rate. Omega is angle, h is distance. है ना? So I can say it is the arc length. In other words, you can say curvature is the arc rate of the turning of the tangent. Turning of the tangent. It is denoted by this K से, या कप्पा कहते हैं इसे, कप्पा बोलते हैं कहीं पे कुछ लोग, K से भी डोंट कर देते हैं, तो मैं कप्पा से डोंट करता हूँ. आपके बुक की नोटेशन यही, ठीक है. K कहीं पे K भी लिख सकते हैं आप, शायद वकास लेक्चर में K यूज किया है ढूंढने में. तो इट इज द कर्वेचर, है ना. The arc rate of the turning of the tangent. Now how to find it? ये तो आपका डेफिनेशन हो गई.
For finding it, I will take the expression. I will derive the expression for kappa. मतलब मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा कि हाउ टू फाइंड कर्वेचर इफ यू हैव सम गिवन कर्व C. तो एक्सप्रेशन फॉर के, ये बताइए यहाँ तक समझ में आया सबको? क्यों भाई Yes, स्टूडेंट्स? sir. Yes, sir. अभी क्लास टाइम इज वेरी Yes, sir. शॉर्ट, सो एक्सप्रेशन आई विल ड्राइव इन द In the next